Hi, hello everyone. Welcome to our new video. Now, our today's video is about the subject of production and operation management. And in that, the concept we are going to take today, that is the scope of production and operation management. Now, first of all, whenever we talk about the scope means what is the vast area, what is the future area for our production and operation manufacturing, operation management, operation manufacturing industry, all different types of customization industry. What is their feature? So depending on them, there are different types of scope that our industries are going through. So in this, the very first point that we are going to study today is about the selection of location. Now what exactly this is about selection of location? सपोज फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज अगर आप लोग को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, यू गाइज वॉन्ट टू स्टार्ट अप वन बिजनेस ऑफ अबाउट द स्टेशनरी. आपको एक स्टेशनरी का शॉप ओपन करना है, तो उसके पहले आप लोग क्या देखोगे? फर्स्ट आप लोग ये देखोगे कि नियरनेस टू मार्केट है या पब्लिक प्लेस पे है, रेसिडेंशियल एरियाज में है. इन द सेम वे अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू चेक? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज proximity. The meaning of proximity means nearness to market. Obviously, if there is any production industry, if there is any of the industry, the very first point that I am going to see is about the nearness to market. Now, why I am going to see for nearness to market? Because I want easily available raw materials, the availability of labor, and also the transportation cost should be as minimum as possible. That is the very first point. If I want to set up industry in any of the market area, I am going to check first the nearness to market, nearness to where the labor can be get easily to me, whether the raw material will be easily available to me, and the transportation cost of my raw material, like from manufacturing industry, from wholesaler, retailer, and then to consumer, the cost will be as minimum as possible. This is the very first point that I am going to check. That is the proximity. And thus the second one is selection of location will be based on its future expansion and diversification. Obviously guys, if you are an entrepreneur, the very first point we check it about, that is the expansion. That in future में मेरा business कैसा expand होगा, like, and also about the diversification. The best meaning of the real example of expansion that I can give you, like, suppose you are in already one of the company's product, you want to add on some new product in that. Like Colgate is coming up with the soap, Colgate is coming with the toothbrush, toothpaste. All these are the example of coming up with some innovative new products in their already product line. This is what the expansion of the product is there. If I am talking about the diversification, अगर मैं डाइवर्सिफाई करना चाहती हूँ मेरे बिजनेस को, इट मीन्स मेरा एक ऑफिस मुंबई में सेटअप है, एक दूसरा ऑफिस नई मुंबई में सेटअप है, तीसरा ऑफिस एक नासिक में, नागपुर में, पुणे में. All this is what I am going to diversify my business. मैं डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना चाहती हूँ? सपोज जो भी रिस्क, ऑब्वियसली अगर बिजनेस है तो रिस्क तो आने ही वाला है. सो जो भी फ्यूचर में रिस्क आएगा, सपोज एक मार्केट में जो मेरा नई मुंबई में मार्केट में एक शॉप है वो इफेक्ट हुआ, बट रेदर देन दैट शॉप मेरे जो बाकी सिटीज में शॉप है वो तो ओपन है. So this is what diversification. So as an entrepreneur, we will always think the first point about the expansion of my business and obvious the diversification of your business so that your risk can be diversified easily. So this is what about the first that I'm going to check about the selection of location. The second point that I'm going to check about, that is plant layout and material handling. Now best example मैं first आपको बता रही हूँ, the meaning of plant. Whenever the word plant comes in the industry, that is the setting up of any warehouse, setting up of any industry, that is known as the plant layout. Now इसका example मैं आपको बता रही हूँ. Suppose आजकल हम लोग सब लोग जाते हैं, मॉल में जाते हैं, डीमार्ट में जाते हैं. लाइक अगर छोटे बच्चे रहे तो हम लोग पहले जब भी अगर आप लोग काउंटर में जाओगे, कौन से भी काउंटर में जाओगे तो वहाँ पे एक बहुत सारे चॉकलेट्स होते हैं, राइट, बहुत सारे खिलौने भी होते हैं. सो वो सब क्यों होते हैं? टू अट्रैक्ट द किड्स, ताकि वो लोग काउंटर में जब बिल पे करेंगे तो वो लोग वो भी चीजें ले सकेंगे, लाइक ऑल दो चॉकलेट्स, ऑल दो टॉयज जो अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को. सो इन द सेम वे प्लांट लेआउट कैसा होना चाहिए? whenever you enter in some of the mall, तो आप लोग को क्या दिखेगा? अरे भाई कपड़े का सेल लगा है, 50% सेल है, यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, whatever the different types of setup are there. This is to attract you
एंड टू इजिली सेटअप, कस्टमर्स को इजी सेटअप कैसे दिए जाए, फिजिबिलिटी कैसा होना चाहिए, all this is about the layout of any of the shop, any of the malls. So in the same way, in the similar manner, अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट लेआउट, मतलब इंडस्ट्री का, अगर हम लोग वेयर हाउस के बारे में बात करेंगे, कौन से भी वेयर हाउस में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे जो भी स्टोरेज का स्पेस रहेगा, इट शुड बी मच मोर इजियर फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज, फॉर द लेबर टू गेट द what are the materials है जो easily shift होना चाहिए from one place to another. अगर हम लोग वेयर हाउस में जाएंगे, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बहुत सारे वेयर हाउसेज होते हैं, तो वहां पे मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक वो इक्विपमेंट्स, वो टेक्नोलॉजी, इट हेल्प्स यू टू मूव द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो इन दिस वे द प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक शुड बी इजिली अवेलेबल इन एनी ऑफ द इंडस्ट्री. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मीनिंग दिया है, प्लांट लेआउट इज जस्ट इन प्लान of an optimum arrangement of any of the facilities. Facilities मतलब मैंने आपको जैसे बोला कि अगर मेरा वेयर हाउस है, वेयर हाउस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो कैसे इजी विजिबिलिटी होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए टू ईच एंड एवरी लेबर, ताकि उसे इजीली दिखे कि यस ये कंपनी का प्रोडक्ट इस लाइन में है, ये कंपनी का प्रोडक्ट इस लाइन में. इंक्लूडिंग पर्सनल, दैट मीन्स पर्सनल मीन्स द एम्प्लॉइज, here operating equipments, whatever the technologies for moving the material from one place to another, जो भी technologies उनके पास available है to the manufacturing industry. Storage space, which is the most important thing, space should be utilized at the maximum level to any of the plant layout in the industries, and material handling equipments and all the other supporting services to the plant layout. So हमेशा याद रखो, जब भी plant word आता है in the production subject में, that is the industry or the manufacturing setup. It should be easily, all the facilities should be easily available in any of the warehouse. ठीक है? So first point हमारा था selection of location, second था plant layout and material handling. We will move to the third point, that is the product design. तो सबको पता रहेगा कि प्रोडक्ट डिजाइन कैसा होना चाहिए. सपोज ऑफ हम लोग कैडबरी कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो पहले कैडबरी कैसा होता था, वहां पे फर्स्ट अभी जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो डायरेक्ट चॉकलेट आता है, लेकिन पहले कैसे रहता था, पहले उसमें गोल्डन रैप आता था, राइट. दिस इज फॉर द अट्रैक्शन फॉर द स्मॉलर किड्स. क्या चॉकलेट ऐसी है कि ईच एंड एवरी डेमोग्राफिक एज सबको पसंद है. सो हाउ द डिजाइन शुड बी देयर, डिजाइन शुड बी मोर अट्रैक्टिव, बिकॉज आजकल का मार्केट इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटिटिव मार्केट. सो मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, वो क्या टेक्निक यूज कर रहा है टू अट्रैक्ट ईच एंड एवरी कंज्यूमर फ्रॉम डिफरेंट मार्केट. सपोज प्रोडक्ट डिजाइन कैसा होना चाहिए, एक इनोवेटिव डिजाइन होना चाहिए, ताकि ईच एंड एवरी कस्टमर गेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स. अगर हम लोग सिर्फ डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो उसमें पैकेजिंग का भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. हाउ द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी देयर. अगर हम लोग मैगी का प्रोडक्ट देखते हैं तो मैगी का इज लाइक येलो कलर, ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट्स इज मेंशन, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, हर एक प्रोडक्ट के अंदर दिस पैकेजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग फैक्टर which is considered. So whenever you talk about the product design, it is not only about the designing of the product but also the packaging, which is the most important factor which should be considered. So this is all about the product design. बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आप मार्केट में हो तो आपके कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग क्या बेंचमार्क सेटअप कर रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू विन द मार्केट, सो यू हैव टू कम अप विद सम इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज इन द मार्केट. दैट इज व्हाट द प्रोडक्ट डिजाइन. ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट द प्रोसेस. अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे मशीन्स लगेंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे. तो वो जो मशीन्स है ऑब्वियसली इट शुड बी इन अ प्रॉपर कंडीशन. Each and every technology, each and every equipment should be in a proper working condition. अगर वो outdated है, obviously your product will be damaged, your goodwill in the market will be damaged. So you should always maintain what technologies will be using for manufacturing the product, whether those technologies are available in the market, then only you are going to go with that innovative product. So जब भी हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, that is about the product. एंड प्रोसेस के बारे में जब भी हम लोग वर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्रोडक्ट प्रोसेस क्या होता है. सो प्रोडक्ट विच इज द टैंजिबल प्रोडक्ट विच कैन बी सीन एंड टच. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, प्रोसेस इज जस्ट अबाउट द मशीन, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स दैट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट. दैट इज द प्रोसेस डिजाइन. ठीक है, उसके बाद द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. अभी इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, क्विकली हम लोग करते हैं. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. एक सिंपल एग्जांपल फर्स्ट में लेती हूँ ये कंसेप्ट समझने के लिए. हम लोग अगर कौन से भी प्रोडक्ट के प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे करने वाले हो, हाउ यू आर गोइंग टू डू द प्लानिंग. आप लोग को डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में सबने सुना रहेगा, नहीं भी सुना रहेगा. सो इन शॉर्ट आई विल जस्ट एक्सप्लेनिंग यू
डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट में सपोज मेरी कंपनी है नोटबुक की, आई एम नोटबुक मैन्युफैक्चरर इन अ मार्केट. सो मुझे आज पता चला कि नई मुंबई में 1000 बुक्स आर रिक्वायर ऑफ दिस कंपनी. तो मैं मैन्युफैक्चर कितना करने वाली हूँ? 1000 या 1500 वॉट एवर इन एक्स्ट्रा स्टॉक, राइट. मुझे पता है कि मार्केट में आज कितना रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आई एम गोइंग टू मैन्युफैक्चर. So each and every company does the demand forecasting. अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है, still you are manufacturing your product, उसके हिसाब से क्या होने वाला है? आप लोग को लॉस होगा और आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा. That means you are in entire loss. So first आप लोग को क्या करना है इसके लिए? To avoid all this, you have to do the planning. प्लानिंग किस चीज का? कि आपके प्रोडक्ट का कितना रिक्वायरमेंट है आज के मार्केट में, अकॉर्डिंगली हाउ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई योर कस्टमर. You have to do exact planning of your product as well of your services. Okay. Next is about the routing. अच्छा, मुझे पता चल गया कि नोटबुक को ये मार्केट में, नई मुंबई के मार्केट में जाना है. तो मैं क्या करने वाली हूँ? आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रूट. बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन वेज है, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. वैसे भी आप लोग को सबको पता रहेगा, एयरवे ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवे ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन है. व्हाट इज दिस? दिस आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो रूटिंग हम लोग को ये सजेस्ट करता है विच रूट विल बी बेस्ट फॉर योर प्रोडक्ट टू बी डिलीवर इन अ शॉर्टर टाइम, राइट. एट द एंड मुझे क्या करना है? मुझे मेरा कॉस्ट बचाना है, जो मेरा एक्सपेंसेस है वो मुझे कम करना है. सो हैज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट मोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. दैट इज व्हाट द रूटिंग मीन्स. नेक्स्ट इज अबाउट द शेड्यूलिंग. अच्छा, मुझे पता चल गया कि ये रूट में मेरा प्रोडक्ट डिलीवर होने वाला है. सो आई एम गोइंग टू शेड्यूल माई प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली ताकि वो प्रॉपर डिस्पैच हो सके, राइट. व्हाट इज दिस? डिस्पैचिंग. एट द एंड हम लोग क्या करने वाले? माई प्रोडक्ट इज गोइंग टू डिस्पैच टू द एंटायर रिटेलर, कंज्यूमर, वॉट एवर द होलसेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन इज. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल. जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, whenever the word quality comes, यहाँ पे कंपनी का क्या रोल होगा? What will be the role of the companies? कि जो भी डिफेक्ट होती है, how you are going to control your defect in your product? Because at the end, as an entrepreneur, as a manufacturing company, you have to serve the best product or you have to provide the best service to your customers, right? So here, as a manager, you have to control the quality of the product. उसके लिए आपको क्या करना है? जैसे मैंने बोला था, मॉनिटर करना है. हमेशा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपको मॉनिटर करना है. लाइक हाउ द डिफेक्ट्स विल बी जीरो डिफेक्ट्स. कुछ भी डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए. उसे हम लोग प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक टर्म है, दैट इज नोन एज जीरो डिफेक्ट. ठीक है. दैट इज व्हाट अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल. नेक्स्ट इज मटेरियल्स मैनेजमेंट. अच्छा, ये सब था अंडर द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में. That is still quality control. In this way, you are going to plan your product, and at the end, you have to control the excellence of your product or services in the best way. ठीक है. The next one is materials management. Guys, materials management is very vast topic, but मैं short में आपको बता देती हूँ. Materials management subject भी होता है, but under this, if you are going to, from the word itself, you can split up. Material, that means the product. How you are going to manage and how it is going to deliver to your customer. That is about the materials managed, right? And next one is maintenance management. जो हम लोगों ने किया था यहाँ पे about the planning, about the arrangement of facilities, maintain, right? That means the process. How you are going to maintain your particular product, particular materials in the warehouses. How you are going to अच्छा इन प्रोडक्शन में हम लोग मटेरियल्स को हमेशा इन्वेंट्री कहते हैं. द अनदर वर्ड फॉर द प्रोडक्ट और अनदर वर्ड फॉर द गुड्स इज नोन एज इन्वेंट्री. हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री. ठीक है. बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री. उनको पता होता है, स्टिल दे गेट कंफ्यूज. सो गाइस, यू डोंट गेट कंफ्यूज. सो अनदर वर्ड फॉर द प्रोडक्ट इज नोन एज द इन्वेंट्री. So at the end, it is again the duty of the manager that how he is going to manage the entire inventory which is there in the organization or in the manufacturing plant. Okay. So thank you. This was for our scope of production operation management. If you guys have any doubt regarding any term, because आजकल थोड़ा सा difficult था for different terms here, but still guys, if you have any doubts, you can just comment me below. I'm available for you. ठीक है. Thank you for watching and having your patience. Thank you so much. Stay tuned for next video. Thank you.